سورۃ القرآن کے اس سیشن میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کی شرکت کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول عطا فرمائے اور بہترین علم اور عمل سے نوازے انشاءاللہ۔ سورۃ القرآن کے اس سیشن میں آج ہم پڑھنے والے ہیں توحید کے تعلق سے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دیکھنے والے ہیں سورۃ التکویر جو ریمیننگ آیات ہے انشاءاللہ، بہت سارے سائنٹیفک فیکٹس اور انشاءاللہ انٹریکشن کے ذریعے سے۔ تو ان تلاوت قرآن سے انشاءاللہ ہم لوگ اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے ہماری بہن اور اچھی ساتھی شاہجہاں بیگم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میں سورۃ تکویر آیت نمبر 8 to 15 تلاوت کروں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ۔ اور جب زندہ در غور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ کے سبب قتل کی گئی، اور جب آمائن اعمال پھیلا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تب ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا عمل لایا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شاہجہاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید دنیا اور آخرت کی خیر سے نوازے اور بہترین علم و نافع اور عمل کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ انشاءاللہ ہم لوگ سیشن آگے بڑھاتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیشن کی طرف، جو ہمارے سامنے پریزنٹ کر رہی ہے ہماری بہت ہی اچھی ساتھی اور فریدہ مسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ سیشن میں آپ سب کو تہہ دل سے ویلکم کرتی ہوں۔ الحمدللہ آج یہ 2021 میں ہم لوگ آ گئے ہیں۔ پریکٹیکلی ٹائم تو فلوئنگ، یہ تو چلتے آ رہے ہیں، ہم لوگ اپنا آسانی کے لیے اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں، اپنا اسے ڈیوائڈ کر کے ایئر منتھ اسی طرح ہم لوگ اسے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ادروائز اللہ جو ہمیں مہلت دیتے ہیں، ہمیں زندگی دے رہے ہیں، حیات دیا ہے، ہر ایک پل کے لیے ہمیں مبارکباد دینا چاہیے اور ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، زندگی دیے ہیں، تو ہم اس میں اور کچھ نیک عمل کر لے، اللہ کو راضی کرنے کا کوشش کریں۔ تو اس مقصد کے ساتھ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، یہ جو وقت اسے اللہ عبادت میں شمار فرمائے۔ کہنے میں سننے میں کچھ بھی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرے۔ اللہ جو چیز ہمیں سمجھانا، سکھانا، عمل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ٹھیک وہی ہمارا دل میں اللہ ڈال دے۔ تو الحمدللہ ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ توحید۔ ہمارا آج کا سبق ہے توحید۔ توحید یہ ورڈ، یہ جو لفظ یہ آیا ہے وا ہا اور دال سے،
The word tawhid has been derived from the Arabic roots wa, ha, dal. तो इसका माने क्या है? इसका माने है एक और अनोखा. It literally means oneness and uniqueness. एक और अनोखा भी. ये सिंगुलर में यूज होता है. अरब लोग वाहिद, वाहिद, अहद ये सब कुछ एक ही माने में यूज करते हैं सिंगुलर में, जिसका माने होता है एक. तो तौहीद ये वर्ड आया है वाहिद या अहद से, जिसका माने है सिंगुलर, एक, बेमिसाल, अनोखा. ये इसका लफ्जी माने होता है. लेकिन इसका तकनीकी माने, टेक्निकल माने क्या है? एक है, अनोखा है, लेकिन क्या, कौन सा चीज? इसका तकनीकी माने यानी टेक्निकल माने ये है कि अल्लाह एक है. अल्लाह एक है, वो अकेले है. अपना वजूद में सिफात से अल्लाह अकेला है और वो अकेला इबादत का हकदार है. प्रैक्टिकली जात में, सिफत में, हुकूक में और इख्तियारात में अल्लाह एक है. जात में अल्लाह एक है, इसका माने क्या है कि अल्लाह एक ही है. वो किसी से जना गया नहीं और ना ही किसी को जना है. अल्लाह का कोई बाप नहीं है, अल्लाह किसी का बाप नहीं है. जो कि ईसा अलैहिस्सलाम या उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं, वो गलत है, वो ठीक नहीं है. अल्लाह कुरान में बार बार ये बात समझा दिया है. फिर फरिश्तों को जो अल्लाह का बेटी कहते हैं, ये भी ठीक नहीं है. और जात में अल्लाह एक है, किसी से ना तो जना गया और ना अल्लाह ने किसी को जना है. उसकी किसी से रिश्तेदारी नहीं है. कुरान में ये भी बताया गया, मत तखाजा साहिबाता वाला वालादा, ना तो बीवी बनाया ना ही तो औलाद. अल्लाह का कोई बीवी भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है. जात से अल्लाह एक, अकेला. अल्लाह का जो सिफत, अल्लाह का सिफत में भी कोई शरीक नहीं है. मसलन कोई गैब को नहीं जानता. अल्लाह जिस तरह गैब को जानता है, किसी का गैब का इल्म नहीं है. कोई अल्लाह जैसा सुन नहीं सकता, कोई अल्लाह जैसा मदद नहीं कर सकता. ये सारे सिफत, ये सारे क्वालिटी सिर्फ अल्लाह में है. गैब को कोई नहीं जानता. जो हम लोग फॉर्चून टेलर के पास कोई जाते हैं या पूछते हैं या कहते हैं, वो जो कुछ बता देते हैं आगे का, फ्यूचर का, वो ठीक हो जाता है, ये सारा गलत है. गैब को जो आने वाली है या जो पीछे है, बाहर दूर में है, वो किसी इंसान ने नहीं जान सकते. इब्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी गैब का इल्म नहीं था. तो ये जो गैब को जानना, ये सिर्फ अल्लाह का सिफत है. फिर अल्लाह जैसा किसी ने नहीं सुन सकते हैं. हम जहां भी बैठ के हम दुआ मांगे या कुछ भी मुश्किल आसान करने के लिए भी अल्लाह से पुकारे, गिड़गिड़ाए, तो अल्लाह सुन लेता है कहीं से भी. चाहे वो हम फ्लाइट में फ्लाई कर रहे हैं या शिप में या घर में बैठ के या कहीं भी, किसी हाल में लेट के, बैठ के, नमाज में, जब भी हम दुआ मांगते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो अल्लाह सुन लेते हैं. लेकिन और किसी ने नहीं सुन सकते. ये सिफत सिर्फ अल्लाह में है. फिर अल्लाह जैसा मदद किसी ने नहीं कर सकता. अल्लाह ने कहाँ से मदद कर देते हैं, वो बिल्कुल किसी को समझ के बाहर आए. हम देखते हैं कि गज़वाए बदर में अल्लाह ने बारिश बरसा दिया और उसी में इतना मदद मिल गए हैं. इसी तरह हम कहीं से भी अल्लाह मदद कर देता है. इसी तरह मदद करना और किसी का बस में नहीं है. अल्लाह जैसा मदद किसी ने नहीं कर सकता, यानी ये अल्लाह का सिफत में है. फिर हुकूक में, अल्लाह का हुकूक में भी कोई शरीक नहीं, यानी अल्लाह का ही इबादत हो. इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है. उसी के सामने सर झुके, पेशानी झुके तो सिर्फ अल्लाह के सामने. और अल्लाह का इख्तियारात में भी कोई शरीक नहीं. मसलन अल्लाह का ही कानून चले, इख्तियार, कानून बनाने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का ही है.
अल्लाह का ही इख्तियार है कि वो कानून बनाए, कौन सा चीज जायज है या नाजायज है। कभी कभार हम देखते हैं हमारा अपना फैमिली में या सोसाइटी में किसी ने कहे था अरे ये हमारा दादी से ये हमारा फैमिली में ये कानून चलते आ रहे हैं, हम इसी तरह मनाते हैं, या कोई कहता है हमारा जेठ ये कानून बनाया है हमारा फैमिली में ये चलते हैं, तो ये सारे ठीक नहीं है। कानून बनाने का हकदार सिर्फ अल्लाह है। कौन सा चीज जायज नाजायज ये डिसाइड करने वाला अल्लाह है, ये इख्तियार अल्लाह का है, ये दुनिया अल्लाह का बादशाही, तो अपना बादशाही में अल्लाह का ही कानून चलेगा। तो यानी जात में, सिफत में, हुकूक में, इख्तियारात में अल्लाह एक है। तो तौहीद तब क्या हुआ? तौहीद द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का वाहिदानियत, ये है तौहीद। हकीकत में तो अल्लाह एक ही है, और ये जो कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट कि अल्लाह एक है, इसी को ही तौहीद कहते हैं। तौहीद एक अकीदा है। अभी क्वेश्चन, अकीदा क्या है? अकीदा एक इस्लामी परिभाषा, एक टर्म है जिसका माने कि किसी बुनियादी चीज पर यकीन, दीन का वो बुनियादी बात जिसे मान लेने पर वो शख्स उस दीन में शामिल हो जाता है, जिसे इंग्लिश में हम क्रीड कहते हैं। तौहीद एक अकीदा, दीन इस्लाम की ये बुनियाद है। वो वाकया हमें याद है ना कि जो हम सीरत में पढ़ चुके हैं कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को मुशरिकों ने पकड़ते थे, गले में रस्सी डालते थे, गरम रेत पर लिटा देते थे और सीने पर पत्थर रखते थे, और बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने क्या अल्फाज कहते थे कि अहद अहद। तो यही है तौहीद। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी रसूल ने ये एक ही दावत दिया है, तौहीद का ही दावत दिया है। तौहीद सूरा अंबिया में भी अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुमसे पहले जो रसूल भेजा है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जो रसूल भेजा है उसको भी यही वही किया है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। हम देखते हैं तमाम नबी रसूल, नूह अलैहिस्सलाम भी यही बताया, या कौमी बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, अल्लाह के सिवाय गैर अल्लाह कोई इबादत का लायक इलाह कोई नहीं है। ये सूरा आराफ में है। आराफ में कोई सारे नबी रसूल का वाकया है, हम जब दौरे कुरान करेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हुद अलैहिस्सलाम भी यही बताया कि अल्लाह के सिवाय कोई रसूल नहीं है, तमाम नबी रसूल यही बताया। सब नबी रसूल को अल्लाह ने एक ही दावत के तरफ बुलाने के लिए भेजा था, वो है तौहीद की दावत। दीन हमेशा एक ही है, बट शरीयत में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि हम देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में सिजदा जायज था, लेकिन हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम के लिए, हम लोगों के लिए सिजदा माना है, सिर्फ अल्लाह के लिए सिजदा। तो शरीयत में थोड़ा बहुत चेंज है, बट दीन हमेशा तौहीद पर है, एक अल्लाह की इबादत करना, यही दीन देकर अल्लाह ने तमाम नबी रसूल को भेजा। और अल्लाह खुद भी अपनी वहदानियत की गवाही दी है, उसके फरिश्तों ने भी और इल्म वालों ने भी। ये सूरा अल इमरान आयत नंबर 18 में यही बात है कि अल्लाह ने, अल्लाह की विटनेस, अल्लाह की गवाही से ज्यादा ऑथेंटिक और किसका होगा? अल्लाह और अल्लाह का फरिश्ते और इल्म वाले। अल्लाह तो खुद ही तमाम दुनिया की बादशाह है, उनका बादशाही में हम लोग हैं, तो उन्हें अल्लाह ने खुद गवाही दे रहे हैं, और अल्लाह का जो फरिश्तों उन्होंने और इल्म वालों ने, ये सूरा अल इमरान में है। तो जब इंसान ये बात भूलने लगे, तब अल्लाह ने नबी रसूल भेजा यही बात याद दिलाने के लिए कि अनीबुदुल्लाह वज्तनीबुत तागूत, की अल्लाह की इबादत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मक्की जिंदगी का 13 साल खास ये तौहीद का दावत देता रहा, खास ये तौहीद का दावत देता रहा। हमें याद है, सीरत में हम पढ़ चुके हैं कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके मुतैम बिन एक आके उनको बहुत तकलीफ दे रहे थे, तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने आया
और कहा कि तुम लोग इस आदमी को किया इसीलिए मारना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। तो पूरा मक्की जिंदगी मोस्टली जो स्पेशली तौहीद का ही दावत देता रहा। अभी तो तौहीद क्या है? तो तौहीद हम दीन इस्लाम का बुनियाद है। तो इसका इम्पोर्टेंस की तरफ हम चलते हैं। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि तौहीद दीन इस्लाम का बुनियाद है। इसी पर दीन इस्लाम का जो इमारत वो खड़ा है, इसी पर कायम है। और कुरान और सुन्नत से हमें मालूम होता है कि इंसान का एक एक अमल अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल तब होगा अगर वो अमल सही अकीदा के साथ यानी ईमान के साथ तौहीद के बुनियाद पर किया जाए, तब वो अमल काबिल कबूल होगा। सूरह माइदा में भी अल्लाह ने फरमाया वमा यकफुर बिल ईमानी फकद हबितत अमालुहु, अगर कोई जिस किसी ने ईमान के नीति पर चलने से इनकार किया तो उसका जिंदगी का सारा किया धरा बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे टाइम हमें यही लगता है ना कि हम अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे, दूसरों को मदद करेंगे, डोनेट करेंगे, ऑर्फनेज चलाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छा हर चीजें नेक करते रहेंगे, दुनिया का भलाई करेंगे, सोसाइटी का भलाई करेंगे, खुद सच बोलेंगे, तो ये सारे नेक अमल करेंगे और किसी का जरूरत नहीं है। बट ये नेक अमल तब काबिल कबूल होगा अगर वो ईमान के साथ किया जाएगा। पहले ईमान लाना है। प्रैक्टिकली कुरान में जो अकीदा के जगह, तौहीद के जगह अकीदा के जगह पर ईमान ये लफ्ज यूज हुआ है, अकीदा ये वर्ड बाद में आया है। तो ये जो तौहीद में एंटर होने के बाद तब नेक अमल अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल होगा। देखो मार्केट में तौहीद के जरिए हम दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे मेडिसिन का बुक्स है। अगर हम मार्केट से मेडिसिन का बुक खरीद लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, क्या हमसे कोई ट्रीटमेंट कराओगे? नहीं ना। हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, उन लोगों का सिलेबस फॉलो करना है, वहां से पास आउट होना है, तब ना मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, तब ना मुझसे कोई ट्रीटमेंट कराएगा। तो इसी तरह पहले हमें दाखिल होना है, तौहीद के जरिए दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होना है, फिर जो नेक काम करेंगे वो अल्लाह के नजदीक कबूल होगा, उसका अजर मिलेगा। और हमारा तमाम कोशिश यही है कि अल्लाह हमारा अमल को कबूल कर ले। तो काबिल कबूल तब होगा जब वो तौहीद के बुनियाद पर वो अमल किया जाएगा। तो तौहीद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलेगा? अल्लाह की किताब यानी कुरान से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीस से जानकारी मिलते हैं। तो और ये जो जानकारी, ये जो मालूमात है, ये सहाबाए किराम और सल्फ सालेहीन के समझ के मुताबिक होना चाहिए। कुरान में जो आयत है या जो हदीस है उसका हम अपना हिसाब से मीनिंग नहीं निकाल सकते, अपना हिसाब से तफसीर नहीं बयान कर सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए किराम ने जो तफसीर किया है, जो माने लिया है, जो चीज का, जो कहने का, जो आयत का जो माने निकाले हैं, हमें भी वही माने लेना है। अपना समझ के मुताबिक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हक और सच्चाई उसी चीज में है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम थे। तो एक इंसान इस्लाम में दाखिल होता है तौहीद के बुनियाद पर, और तौहीद का रूह है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका माने क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह इसका माने है गैर अल्लाह के इबादत का हकदार होने का इनकार करना और सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत को साबित करना। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलीमा का दो रुकन है, दो पार्ट है। पहला है ला इलाहा, ला इसमें क्या हो रहा है? नाफी, डिनायल। ला इलाहा नहीं कोई माबूद, नाफी डिनाई कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, गैरुल्लाह की इबादत का इनकार हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है? इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह। इसमें एफर्मेशन है, इसमें इबादत को सिर्फ अल्लाह के लिए ये साबित कर रहे हैं, एफर्मेशन है इसमें। तो अल्लाह का फरमान है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता और अपने कौम से कहा कि मैं इन बातों से अलग हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, सिवाय उस ताकत की जिसने मुझे पैदा की, तो और वही मेरी हिदायत भी करेगा।
यानी इबादत करना ही सिर्फ काफी नहीं, अल्लाह का हम इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का इबादत करें यही काफी नहीं, बल्कि जरूरी है कि इबादत अल्लाह के लिए खालिस हो, सिर्फ अल्लाह के लिए हो। तौहीद उस वक्त तक नाफामंद नहीं हो सकता है जब तक कि सिर्फ एक अल्लाह का इबादत करने के साथ साथ शिर्क से अलग ना हो जाए। अल्लाह का इबादत तो हम कर रहे हैं, साथ साथ दूसरे का भी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ये तौहीद नहीं है। मुशरिकिन मक्का उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जमाने जहालियत में, उसी टाइम जो मक्का वालों ने अल्लाह को तो मानते थे, अल्लाह को इनकार नहीं करते थे, लेकिन साथ साथ लात मनात उज्जा इन लोगों से भी इन लोगों को भी मानते थे, इन लोगों का भी इबादत करते थे, इन लोगों का तवाफ करते थे, इन लोगों से दुआ मांगते थे, पुकारते थे। तो ये तौहीद नहीं होगा। तो मुशरिकिन मक्का भी यही काम करते थे। तो हम देखते हैं अबू जहल, अबू सुफियान, वो लोग अल्लाह का वास्ता देते थे, अल्लाह से दुआ भी मांगा करते थे। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि उन लोग भी अल्लाह को मानते थे, बट अल्लाह के साथ साथ शरीक करते थे। तो ये तौहीद का अपोजिट हो रहे हैं, ये तौहीद नहीं। दूसरे का इबादत को भी हमें छोड़ना होगा। हर चीजें में कुछ डू दैट एंड डोंट डू दैट, ऐसा है ना। तो जो एक चीज एक्सेप्ट करना और एक चीज रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना भी होगा। तो तौहीद एक अकीदा, एक बिलीफ, ये तो एक मतलब दिल का एक स्टेट है, दिल का ये एक बिलीफ है। तो इसका जाहिर कैसे होगा? इसका इकरार है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलीमा पढ़ के हम इस्लाम में दाखिल होते हैं, और यही तौहीद का रूह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कलीमा जन्नत का कुंजी भी है, जन्नत का चाबी भी है। हमें बहुत सारे आयत से और बहुत सारे हदीस से ये बात मालूम होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका आखिरी कलमा मौत से पहले जिसका आखिरी कलमा यही होगा, तो वो बख्श दिए जाएंगे। बहुत सारे हदीस का मफहूम भी इसी तरह है। तो ये जन्नत का कुंजी है, चाबी है। तो क्या हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दरवाजा खोल दिया जाएगा? ये तो जन्नत का चाबी है, लेकिन हर चाबी का देखो दांत होते हैं ना, वो कार्व, ये जो हमारा स्लाइड में है, स्लाइड नंबर 17 में, कि हर चाबी का कार्व है ना, कुछ कार्व है। हम मेरा घर का चाबी से दूसरे का घर नहीं खोल सकते। इवन जो बेडरूम का चाबी, उससे बेबी के रूम नहीं ओपन हो सकते, क्योंकि हर चाबी का दांत है, कुछ कार्व दिख रहा है ना, वो पूरा मैच हो जाएगा, तब ना वो डोर ओपन होगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, उस मुताबिक अमल करना है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को जो कार्व है, ये चाबी का जो दांत है, अगर वो मैच हो गया तो जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। दलीलों की रोशनी से में उलेमा ने ला इलाहा इल्लल्लाह कुछ शर्त यानी कुछ रिक्वायरमेंट बयान किए है। ये शर्त, ये जो रिक्वायरमेंट है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह इस चाबी का दांत है। और ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर चीजें का कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करेंगे तब वो चीज हमें मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह से हमारा जन्नत का डोर जरूर ओपन होगा, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा हम पूरा करें। ये तकाजा किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आखिरुदानाहुम व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।